ये कंपनी में, यहाँ मेरे एक दोस्त ने पूछा था, इस कंपनी में क्या है, ओल्ड रेट, जैसा कि अभी जीएसटी चेंज हो चुका है, 28 से 18 आ चुका है, 12 से 5 आ चुका है, कोई आइटम्स और भी थोड़ा फ़र्क आ चुका है। जैसा उसने जैसा मुझे डिटेल्स दिया है उसी तरफ से अब ये कंपनी बना रहा हूँ। सारा ट्रांजैक्शन उन्होंने दिया है। कंपनी का नेम होगा न्यू कंपनी। एक कॉन्फ़िगरेशन जब उसका कंपनी में कॉपी कर देगा तब वो ऑटोमेटिकली चेंज होकर उसका कंपनी का सारा डिटेल्स वो उठा लेगा। अब मैं यहाँ मेरा तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए डिज़ाइन बना रहा हूँ। मैं सोचता हूँ ये सब देख के आप लोग भी आसानी से बना सकते हो। अब तो कंपनी क्रिएट हो रहा है। 13.3 को अपडेट करने के बाद मेरे पास तो सॉफ्ट लॉक का चेकिंग नहीं होता है, लेकिन रन होता है तो डेमो मोड में है। मेरा एक से ही सिस्टम में ऐसा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं है। सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन वो चेक नहीं करता है, लेकिन फिर भी चलता है डेमो मोड में। 13.2 से 13.3 को अपडेट होने के बाद ये ऐसा हो चुका है। अब कंपनी तो बन रहा है। हाँ, अब कंपनी बन गया। कंपनी बन के डायरेक्ट ओपन हो गया। जैसा मैंने कहा था, सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन पूछता ही नहीं। टैक्स कैटेगरी यह क्या कर देता हूं, 28 से अब देखिए यहाँ विथ इफेक्टिव फ्रॉम 22/9/2025 यहाँ 28/18 बन जाता है। ठीक है। अब 5 आइटम, थोड़ा आइटम 5% का था वो नील बन जाता है। विथ इफेक्टिव फ्रॉम 22/9/2025 ये बन जाता है 0। अब 12 का तो जीएसटी 12 में 12% का तो 18 ही रहता है। अभी 18 कोई एक केस में वो बोला है 5% में कन्वर्ट हो जाता है। सेव हो गया। अब 12 का है अभी जीएसटी 12%, अब आ जाता है 5% पे। देखिए अभी यहाँ क्या है, मेरा तो डेमो मोड है। डेमो मोड का मतलब विद इन ए फाइनेंशियल ईयर, whenever you have created in that particular financial year you can use it for 15. Whatever the changes that needed, that has been done now. This is a calculation chart that he has supplied to me. GST rate from 28 down to 18%. With GST it will become 118. The calculation discount to be given is 7.81. For 18 to 5 it is 11.2%. For 12 to 5 this is the discount that he has shown to me. This is the discount. This I have to embed all these things while creating items. Now I'll come here. I'm going to create or modify. Already we have some items that details he has provided for me. So now this is GST 18% and it is being converted to 5%. So I can use bulk. I can use bulk updation. Discount, I can use bulk updation of discount. That is, oh, I think I have made a mistake. From 18 to the first int itself, I think it is wrong. It's okay. From 28 it will be turning over to 18, so that is 7.81%. Okay, if you make a, if you while making the discount, if you make a small calculation, you are losing money from your hand. That is for fruit jam, which is earlier 5%, or it is 12%. So now it will become 12 to 5. So for that 12 to 5 conversion I have to provide a discount of 6.25. So it is 10.71. So 12 to 0 I think. Maybe whatever that may be, I may be correct or I may be wrong, but I have shown the concept. But whatever the discount that is needed to be given, you have to consult with your auditor and make sure that you are giving proper discount.
I'm just showing you the method how to do it. I may be wrong also, but never mind. But you follow your auditors, whatever they say you can adopt that. See, that is fruit jam is 12%, and that will change to 12 to 0, that is 10.71. It's right. Oh sorry, 6.25. Somehow I have taken little cautiousness. With a little cautiousness, there could be some mistakes that I need to be corrected. Here I am going to correct it, but at your end you need to correct something in line with your auditors. So whatever the guide they, whatever the margin that they say to make you, whatever the margin that they tell you to put it in the discount, you can put that discount. Here actually I don't know exactly, because I am not in business, I am a hobby designer. So sometimes I may be wrong in giving that discounts. This is what the fellow who has asked me to do the job, he has given me the following details. It is 7.81. According to him it is 7.81. There I have to provide. Even bulk also you can provide discount, bulk discount also you can provide. Instead of doing this you can provide bulk discount. Now that is 5 to 0. When that gets converted from 5 to 0, it is 4.76 that you have to give. This is what that party has given me, all the details. As for the details given by him, I am showing here. I may be wrong, I don't know, I may be wrong, but according to your auditor you can fix the discount. Now it's okay. Now GST 5% to 0%, 5 to 0, according to that is 4.76. Here item wise I am giving discount, here it is 4.76. but when you have large amount of items, it is advised to follow bulk updation. Now I am going to make an invoice. अब मैं एक इनवॉइस बनाने जा रहा हूँ. जब आपका पास लार्ज डाटा होता है तो आप बल्क अपडेशन जाके डिस्काउंट स्ट्रक्चर को यू कैन मॉडिफाई, बिकॉज वट एवर द डिस्काउंट दैट आई हैव party has given to me, I have implemented. But when you have large data, it is better you should follow bulk updation. In that particularly you can find that discount, bulk discount. I am just showing him the SQL coding and the procedure. So depending upon this video, he will adopt it at his end. This is just a procedure. सो मैं आपको कर्नाटक का मेरा दिखा रहा हूँ, क्योंकि पार्टी ने मुझे बोला है जस्ट जो प्रोसीजर जो फॉलो किया है और डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट जो है, डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट तो मैं इसको फॉर्मेट देता हूँ, लेकिन ये जो सीक्वल कोडिंग जो अडॉप्ट किया है ये तो ईसी मॉडल डेमो कॉपी है. मेरा तो बैक एंड एसक्यूएल एक्सप्रेस 2019 का है. यहाँ मैं अभी लिख रहा हूँ, कितना भी लिखो आप, कैसे भी लिखो, वो ऑटोमेटिकली जो डिस्काउंट सब कुछ जो दिया है वो उसी का डिस्काउंट वही आइटम मास्टर से लेता है. अभी जो ले रहा है यहाँ पे आइटम मास्टर से ले रहा है. अब यहाँ हमें अप्लाई टैक्स किया, अप्लाई टैक्स के बटन के बाद अब ये सेव हो रहा है इनवॉइस. अब सेव होते ही डिस्प्ले में आता हूँ, क्रिएट, यहाँ आता हूँ क्रिएट शॉर्टकट. स्पिकल क्वेरी का मेरा हमेशा कंट्रोल शिफ्ट F2 है फॉर्मेट. मैं फेवरेट ऐड नहीं करता हूँ because I am accustomed to it. Now I am going to write a query. My name of that query is being new, so I am going to write here select star from tran2, where tran2 dot voucher type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2. Rect type is equal to 2. I am just going to run this query. Instead of running that query, now I will start writing sub queries. Select master1 dot name from master1
where master1 dot code is equal to tran2 dot master code 1. Master code 1. Now the result of this query is I'm going to get every item that has been sold. This is giving me the name of the item. This query, it is going to give me name of the query, because see, length function. Why I am writing length function? Because while making inverse division, I must know what is the maximum length of the characters. That is, maximum length of the characters in this case particularly being 34. So in the body I need to have a space of 34. Just I'm going to write it as where tran2 dot master code 1 is equal to tran2 dot master code 1 is equal to I'm going to write a subquery here as select tran2 dot master code 1 from tran2, master code 1 from tran2, oh sorry, it is tran2. By mistake I made it as a tran1. Actually it is tran2, where tran2 dot, where capital letter small letter doesn't make any difference, you can write as you wish, where tran2 dot voucher code is equal to @voucher code and tran2 dot sr number is equal to item sr number . What does this item item sr number ? See, you are in a bill, you can have any number of items. Maximum fixed by default is 128, so it has to read. So what does that item master do is item sr number that will read all 128 or any number of items that you have built. It will read all the data starting from 1 till the end. So now here I'm going to write it as SQL query name text. I have selected text. Here I'm going to write it as semicolon new semicolon new comma 50. No, I don't write semicolon here because I have only one column. So blb comma a, I'm going to copy it. Again I'm going to paste it after that query. So now I'm making a calculator here. I have opened calculator. From 119 minus 36, it becomes 83. So blank space I am going to provide 83. Save. Now I'm going to run the query. See, now you can see this much of result. That's what you are seeing on the screen is serial number, quantity, unit and taxable amount. Okay, now quit. Again I'm going to open this. I'm going to add one more query this time. My query name will be old MRP. See, I have to fetch now old MRP. Old MRP will be available from master1 table that is associated with the master. So naturally I have to go to master1 table. Select master1.d2 from master1 where master1.code is equal to m2. Okay, I've selected tran2 table directly. Okay, no problem. tran2 dot master code 1. That query can be written that could be written in 2 or 3 methods, but I have directly selected this query from tran2 table. Doesn't matter. See, now tran2 dot master code 1 and tran2 dot master type is equal to and master1 dot master type is equal to 6. So after that, from tran2 where tran2 dot object type is equal to 9 and tran2 dot type is equal to 2. This means I want see, that is at the first line master1 dot code ho chuka hai. See, after that where master it should be master1 dot code. Okay, now I'm going to save it. I will just run the query. Now I have got the MRP of all the items that has been built. So okay, now I got the MRP. This will be, now I'm going to copy the same query. I'm going to copy. See, just I want to replace from and where last 2 lines, and then
In the query type, I'm going to select it as item details. Okay, now that has been selected. Now I'll go to invoice design. Here in the body, I'll be just adding old MRP after unit. That old MRP is nothing but a text field. Here I'm going to mention that the name as old one space MRP. You can use capital letter or small letter, but the result of the query will not be varied. The result of the query will be always same. Either you can use capital letter or you can use a small letter. That won't make much of the difference. Now let us check with print preview. The item space would have been reduced or not reduced, I don't know. Yes, that is not reduced. Now I have to reduce 11 characters, as a result of which the entire data has been pushed to the right side. I have not reduced that from previous blank space. Now here I have to reduce 11 spaces, that I have to make it as 49. Now in the print preview, now everything will be all right. Now we can have one more print preview. Now we can have one more print preview. Here that old MRP has now come. The old MRP is 65 now. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब दोबारा यही क्वेरी में आता हूं. यहाँ क्वेरी का नाम लेता हूं न्यू MRP. सॉरी डीजल. कोई नाम आप दे सकते हो, उसमें कुछ नहीं है. यू कैन गिव एनी नेम, बट while using that in the invoice design, you have to call that with the same query name. Now see here what I have written. Select master1.d2 from master1, where master type is equal to 6 and master1.code is equal to, and master1.code is equal to select tran2.mastercode1 from tran2, where tran2.vouchercode is equal to @vouchercode and @vouchercode and tran2.sr number is equal to आप अभी मुझे पूछ सकता है ये कैसे पॉसिबल. सी मैंने तो tran2 टेबल को ज्वाइन किया ही नहीं, बट हाउ कैन आई प्रिंट इट. सी tran2 टेबल यहाँ ज्वाइन हुआ ही नहीं. इसीलिए पॉसिबल होता है क्योंकि आप 8th स्टैंडर्ड में एक मैथमेटिकल रूल पढ़ा था आपको. शायद किसी को पता है या नहीं पता है, मुझे पता नहीं. मैं जस्ट याद करा देता हूँ आपको. इफ ए इज इक्वल टू बी एंड इफ बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज ऑल्सो इक्वल टू सी. उसको क्या लॉ कहता है मुझे पता नहीं है, अभी भूल गया हूँ मैं. एसोसिएटिव लॉ और कॉम्पिटेटिव लॉ, कुछ भी एक लॉ है वो मैं भूल गया हूँ. शायद कॉम्पिटेटिव लॉ रहेगा, लेकिन वही प्रिंसिपल मैंने यहाँ यूज़ किया है. ये कहाँ भी आपको सिक्वल क्वेरी का टेक्स्ट बुक्स या कहाँ भी है ऐसा बोलता नहीं है, कौन भी बोलता नहीं है, कौन भी शायद ऐसा लिखा भी नहीं है. मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा लॉजिक यूज़ करने का सीखना है. आप लोगों को लॉजिक भी यूज़ करना है. डाटा कहाँ रहता है, कहाँ टेबल को कैसे लिंक करना है और कैसे बाहर काटना है, ये कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ नहीं है. यू कैन राइट कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, दैट वोंट मेक मच ऑफ द डिफरेंस. diesel, but I don't use here semicolon because the result has come on result is coming only in one column, because I'm having that result from only one column. I'm reading the result from one column. When I'm going to read it from more than one column, then I have to use that comma row is equal to 1, row is equal to 2. That I have to mention here. In this particular case, there is no need to mention for multiple column. The result has come from a single column, that is a scalar subquery. See, now error has come. Okay, I have to check the spelling. Then I have to check the binding condition. Select tran2.mastercode1 from tran2 tran2.mastercode from tran2, where tran2.vouchercode is equal to @vouchercode and tran2.sr number is equal to, and tran2.vouchertype is equal to 9 and tran2.sr number is equal to 2. Now everything is all right, there's no mistake. tran2.rectype is equal to 2. Yeah, this was the mistake. Now I will have my answer. Sorry, I said there is no mistake. Yes, now you see, now we got the answer. This is, oh sorry, again I made a mistake. This is the same result that you have got. The same result
now I have to make it as D3. D3, yes, it is D3. Now you're going to have new sales price. This D3 is going to give you new sales price. See, this is the, sorry that D3 is not new MRP, that's old MRP. That is, old MRP means whatever the MRP that we have in our current stock before 22nd September. Now I'm going to write a query as select tran2 dot, अब मैं query लिख रहा हूँ select tran2 dot D9 comma tran2 dot D10. D9 और D10 क्या है? Discount per piece and what is the discount value per piece from tran2, where tran2 dot which type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2. ये तो लिख देता हूँ मैं. So whatever the value that is there with the D9 and D10, that is the discount that what you have given. See, 7.81% discount आपने दिया है. Discount value is 7.81%, but D10 is nothing but the discount per unit. Now I'm going to write it as absolute of tran2 dot D1. That is nothing but the quantity billed item main unit. That is 2 piece, 1 piece, 2 piece, 3 piece, 2 piece and 10 piece. This is the discount that is middle column is nothing but a discount given per piece. No, sorry, discount given in terms of amount per piece. So from new query, I am going to copy last 3 lines. Here I am just going to replace that lines, that you can watch it on screen. So this is item details. I am going to give the name, the query time shall be this time item details. So this is what coming in report. I mean sales invoice. Report in the sense, in this particular case it is nothing but sales invoice. See, I am going to mention here the discount per piece, discount percentage, and then discount given per piece. That I have to multiply that per piece. I cannot give that per piece like that. Now again I am going to change that query. वो query मैं change कर रहा हूँ. फर्स्ट वाला होगा डिस्काउंट पर पीस, वो कितना % डिस्काउंट दिया है वो वाला आएगा. सेकेंड क्वेरी में अब जो दिख रहा है आपको डिस्काउंट पर पीस दिख रहा है, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दैट विथ क्वांटिटी बिल्ड. वो जो अभी है उसको मैं क्वांटिटी बिल्ड से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब आपको मिल जाएगा टोटल डिस्काउंट, क्योंकि मुझे प्रेजेंट करना है टोटल डिस्काउंट. अब यहाँ तो मुझे 11 कैरेक्टर्स लेस करना है. 27, it will become 27. Now here in the query, अब हम चेक करके देख सकते हैं, यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं एडवांस्ड इनवॉइस डिज़ाइन मेथड्स में यहाँ आता है. अब देखिए यहाँ तो देख रहा है आप 7.81% डिस्काउंट दिया है आपको. ओह, देने के बाद ये क्या है, अभी मेरा पर पीस डिस्काउंट आ चुका है. अभी दोबारा क्वेरी पे जाना है और क्वेरी अल्टर करना है मुझे. हॉर्न में आता हूँ. अब देखिए ये एब्सोल्यूट ऑफ tran2 डॉट D1, the absolute of tran2 dot D1 multiplied by tran2 dot D10. बाकी क्वेरी सब कुछ सेम रहेगा. अब क्या होता है, इसको लेना पड़ेगा. अब सेव कर देता हूं. 1 2 3 4. सो क्वेरी में थोड़ा चेंज कर देता हूं. कॉलम वैल्यू 4 कर देता हूं. अब कॉलम वैल्यू बॉडी में आता हूं. यहां आके कॉलम वैल्यू में मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. अभी जो यहाँ पे कॉलम नंबर 1 है, सेम क्वेरी कॉपी कर देता हूँ. कॉपी करके यहाँ दोबारा पेस्ट कर देता हूँ. दोबारा पेस्ट करके कॉलम नंबर 1 का जगह में अभी मैं कर देता हूँ कॉलम नंबर 4. सो नाउ आई हैव टू रिड्यूस 11 स्पेसेस. After reducing 11, I will have 16. Okay, this is over now. So let us check with print preview. अभी हम यहाँ आके print preview एक बार चेक करके देखते हैं.
See now we see now old price is being 40, MR discount given is 7.81%. Now that a new discount has come down to 6.24, so 40 minus 6.24 हो जाना है. अब मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ हॉर्न क्वेरी कॉमा लिख देता हूँ ट्रांटो डॉट D6 हो गया. अब नया क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, इसी क्वेरी का एक्सटेंशन कर दिया. अब मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉलम वैल्यू 4 से 5 कर देता हूँ, बॉडी में आता हूँ, यहाँ आके सेम क्वेरी कॉपी कर देता हूँ, यहाँ आके कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट करके यहाँ कॉलम वैल्यू 5 कर देता हूँ. अब नाउ आई हैव टू रिड्यूस 11 कैरेक्टर्स. सो व्हेन आई रिड्यूस 11 कैरेक्टर्स आई विल हैव ए ब्लैंक स्पेस ऑफ 5 कैरेक्टर्स. देयर आई हैव टू bring new and old MRP. See there I have to bring new and old MRPs together. अब मुझे वहाँ क्या करना है, वो छोटा सा जगह पे मेरा तो प्रिंट हो ही नहीं सकता है. अब मुझे यहाँ एक्सटेंशन करना पड़ेगा. यहाँ की एक्सटेंशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो जगह नहीं है. जैसे पार्टी ने कहा है मैं अभी करूँगा एक ही काम, वो मेरा काम है आइटम मास्टर का लेंथ कम कट दूंगा. मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब रहेगा लेकिन भाई लोग आप लोग समझ के थोड़ा एडजस्ट कर लेना है. अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ आता हूँ. नो इट्स नॉट नीडेड. हाँ ओल्ड GST ओके. वो अभी वो जो आइटम मास्टर का क्वेरी है उसको मैं सबस्ट्रिंग फंक्शन से ट्रिम कर देता हूँ, क्योंकि मैं एक्सेस डाटाबेस नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ SQL एक्सप्रेस डाटाबेस. इसलिए अभी मेरे पास रास्ता नहीं है, मैं मिड ऑफ फंक्शन यूज़ नहीं कर सकता हूँ, मैं करना पड़ेगा मुझे सबस्ट्रिंग. अगला क्वेरी में मैं न्यू GST क्वेरी लिखने के बाद अब कर देता हूँ. यहाँ देखिए सेलेक्ट m2.d2 फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज m2 वेयर m. देखिए अभी मैं सारा क्वेरी लिख रहा हूँ, ये पहला न्यू टाइप का क्वेरी लिख रहा हूँ. सारा क्वेरी मास्टर 1 टेबल से ही हमारे डाटा फेच करने वाला हूँ. आप देखिए मैं यहाँ लिखा that entire result whatever the value that is available there with the D2, now that has to come and master1 dot master type is equal to 6 master1 dot master type is equal to 6 from master1. देखिए ऐसा ये क्वेरी मैंने अब तक लिखा नहीं है, ये नया क्वेरी है, सीखने वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ. ये क्वेरी अब तक ऐसा नहीं लिखा था, मैंने नहीं लिखा था. अब देखिए रन करके दिखा देता हूँ. अब कोई बात नहीं, अब मैं छोड़ने वाला तो नहीं है. मास्टर1 अब यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ डिस्टिंक्ट, एक फंक्शन लिखा. अब डिस्टिंक्ट हटा देता हूँ, हटा के यहाँ क्या कर देता हूँ एंड master1 डॉट पेरेंट ग्रुप मास्टर m2 डॉट डेट, सॉरी यही गलती, यही प्रॉब्लम था. m2 डॉट डेट इज इक्वल टू 0. अब देखिए यूनिक रिजल्ट आ गया. हमारा कंडीशन क्या है, हमारा कंडीशन क्या है, आफ्टर 22 सितंबर. तो वो कंडीशन एक्टिवेट करने के लिए मुझे क्या है, मैं आफ्टर 22 सॉरी मैं गलत बोल दिया आप लोगों को. मैं बोल रहा हूँ 22 सितंबर का पीछे का रिजल्ट, सॉरी मैंने गलती बोल दिया था. m2 डॉट डेट इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ओरिजिनल रेट, ओरिजिनल GST रेट दैट वाज बिफोर 22 सितंबर. अभी ये रेट में क्या आता है, जो ओरिजिनल वोल्ट परसेंटेज था वही आ रहा है. अब देखिए यहाँ मैंने जैसे कहा है where master1 dot code is equal to select tran2 dot master code 1 from tran2 where tran2 dot voucher code is equal to at the rate voucher code and tran2 dot SR number is equal to at the rate item SR number at the rate and tran2 dot voucher type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2. यही मैं लिखने वाला हूँ, उतना लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ. ये एंड मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6 वो बाहर ही रहेगा आंसर, उसको बाहर ही रहने छोड़ देता हूँ. अब यहाँ आता हूँ, आइटम डिटेल सिलेक्शन कर देता हूँ. आइटम डिटेल सिलेक्शन कर दिया, अभी मेरा काम आसान हो गया. अब मैं वहाँ क्या कर देता हूँ, ओल्ड GST रेट को प्रिंट कर देता हूँ. स्पेशल में आ गया बॉडी में. अब वहाँ क्या है, अब यहाँ है हमारे पास सिर्फ 7 कैरेक्टर्स. सो आई विल यूज दैट 7 कैरेक्टर्स. आई विल राइट इट डाउन एज सेलेक्ट, नॉट सेलेक्ट, सॉरी क्वेरी टाइप, नंबर टाइप,
name what old GST. Whether you write with the capital letters or you write with the small letters, that won't make any difference. Here it will be 7.2. So that is C. Okay. ये ऐसा क्वेरी ऐसे इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा तो एग्जम्प्ट बोल के नहीं आता है, नॉन जीएसटी बोल के नहीं आता है, इसके लिए मैं टेक्स्ट तो नहीं आता है. जब टेक्स्ट आ गए ना तो एरर दिखेगा. अब देखिए मेरा तो ओल्ड क्वेरी 18% का 18 ही है, 28 का है, 12 का है, 28 का है, 5 का है, 12 का है, ये सब क्वेरी ओल्ड क्वेरी. अब आगे बढ़ता हूँ. अब मुझे क्या करना है, एक कंडीशन नया क्वेरी लिखना है, न्यू जीएसटी. ये क्वेरी कैसे लिखना है? अब हमको जो जीएसटी रेट अब 22 सितंबर से जो जीएसटी रेट अभी इम्प्लीमेंट हुआ है उसको रेट करना है. बस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज M2. सेलेक्ट यहाँ क्या करना है, M2.D2 लिखना है. M2.D2 इतना लिखने के बाद इनर जॉइन tran2 ऑन, tran2 डॉट इनर जॉइन, सेलेक्ट master1.cm8 is equal to tran2 डॉट, नहीं इतना क्वेरी हटा दिया मैंने, वैसा भी लिख सकता है लेकिन वो भी हटा दिया. सेलेक्ट M2.D2 from master support as M2 where M2.master code is equal to master1.cm8 code is equal to master1.cm8 and master1.master type is equal to 6. master1.master type is equal to 6 and M2.date is greater than 0. ये मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ क्योंकि एक्सेस में मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ. एक्सेस में मैं अब एक अगर ये लिख दिया भी वो गलत आंसर आ जाएगा, इसके लिए मैं इन कंडीशन यूज़ करता था. वहाँ मेरा लेबल प्रिंटिंग लास्ट वीडियो में अगर आप देख दिया तो आपको पता चल जाएगा. एक्सेस जो मानता नहीं है, जो सारा डिटेल्स जो है वो एज इट इज़ एक्सेस मानता नहीं है. हर काम एक्सेस क्वेरी, एक्सेस डाटाबेस में जीएसटी ये क्वेरी लिख के आप रिजल्ट, वहाँ हर क्वेरी का रिजल्ट नहीं आता है. आपको बिजी का सारा मजा लेना है, आपको सीक्वल डाटाबेस का बैकएंड लेना है. आइदर आपको एसएससी लेना है या ईसी वर्जन लेना है. एससी का मतलब क्लाइंट सर्वर, ये एंटरप्राइजेस में क्लाइंट सर्वर भी आप ले सकते हैं. इसमें आपको सारा मज़ा बिजी का अगर आपको समझना है, यहीं आके समझना है. बिजी तो इतना मज़ा आपको कहाँ भी लिखो, जो आपने बोलता है वो काम एक्सेस डाटाबेस में नहीं होने वाला है. अब हमको लिखना था न्यू. अब यहाँ मैं जैसा मैंने थोड़ा वक्त पहला बोला है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ सबस्ट्रिंग फंक्शन, सबस्ट्रिंग ऑफ 1, 1 नहीं, ये गलत हो गए शायद. सारा क्वेरी एक बार टेस्ट करके देखता हूँ. वहाँ 1, 25. ओके, नाउ इट्स ओके. 1, 25. यहाँ लिखूँगा 26, 25. 26, 25. ओके, नाउ लेट अस रन दिस क्वेरी. ओके, नाउ लेट अस रन दिस क्वेरी एंड अब हम क्वेरी को चला के देख सकते हैं. देन आई हैव टू पुट इट इन माय रिपोर्ट डिज़ाइन, इनवॉइस डिज़ाइन. अब देखिए, मैं तो ओल्ड क्वेरी तो हो गया, न्यू क्वेरी प्रिंट होके नहीं आया. अभी ये क्वेरी को मैं क्या कर देता हूँ, मेरा स्पेस कम कर देता. इनवॉइस डिज़ाइन में पर्टिकुलर्स का स्पेस जो है वो थोड़ा लेस करके
35 है, और लेस करने के लिए अभी कॉलम रो इज इक्वल टू 1 कॉमा कॉलम इज इक्वल टू 1 कर दिया। अब करने के बाद यहाँ ट्रिमिंग कंडीशन लिख देता हूँ, मैनिफोल्ड डाटा मैनिपुलेशन कंडीशन लिख देता हूँ। अब 27 हो गया, 27 यहाँ हैशटैग L1 L1 कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली कोई कॉपी कर देता हूँ, सेम कंडीशन दोबारा डाटा सॉरी नॉट डाटा फॉन्ट ऑन प्रिंट इफ एनी then condense on and condense off. Oh, here I have selected the CPI on, whereas the upper line I was using, oh, I made a mistake. I think it's a blunder. Okay, row is equal to 1, column is equal to 2. फर्स्ट लाइन का टेक्स्ट हो चुका है कंडेंस पे, सेकेंड लाइन का कंटिन्यूड आइटम नेम गलती से अभी क्या हो गया है, CPI-12 में आ गया है। कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब तो टोटल स्पेसेस तो मिल गया है, सेव कर देता हूँ। अब दोबारा रन करके देखता हूँ। अब रन करके देखता हूँ यहाँ पे न्यू GST रेट भी आ गया, ओल्ड GST रेट भी आ गया। अब इतना तो हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा तो मैं इन्वेस्ट डिजाइनिंग यहाँ किया है, लेकिन वो मैंने यहाँ सब कुछ नहीं दिखाया है। यहाँ एक नाम लिखिए, अभी क्वेरी का नाम लिखा PMP। यहाँ लिख रहा हूँ सेलेक्ट, सब क्वेरी शुरू किया। सेलेक्ट मास्टर 1 डॉट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर मास्टर 1 डॉट कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड 1 comma sum of tran2 dot वैल्यू 3। ये मैं लिख रहा हूँ बिल सेंट्री के लिए फ्रॉम tran2 वेयर tran2 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9 एंड tran2 डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू 3। बिल सेंट्री के लिए tran2 डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू 3, इतना तो लिख रहा हूँ, 3। अब रन कर देता हूँ इस क्वेरी। अभी जो बिल सेंट्री स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, कहाँ है देखना पड़ेगा। ओ ग्रुप है, सॉरी नॉट स्पेलिंग मिस्टेक, सम लिया है मैंने, अग्रीगेट फंक्शन है सम लिया, इसीलिए मैंने क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे तो लिखना पड़ेगा ग्रुप बाय tran2 डॉट मास्टर कोड 1 ऑर्डर बाय tran2 डॉट मास्टर कोड 1। असेंडिंग या डिसेंडिंग मैं कंडीशन लिख के लिखता हूँ, मोस्टली असेंडिंग बोल के लिख देता हूँ। अब कंडीशन देखिए आ गया, राउंड ऑफ आ गया, GST आ गया, CGST आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, राउंड ऑफ को नीचे लेना है, इसलिए मैं डिसेंडिंग लिख देता हूँ। अब SGST ऊपर आ गया, राउंड ऑफ नीचे आ गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ क्या कर देता हूँ मैं, वेयर अब ऐड कर देता हूँ, वेयर का सामने इसलिए शुरू कर देता हूँ, वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड and tran2 dot SR number is equal to @BSSR। नहीं आइटम नहीं चलेगा, ये मैं बिल सेंटर में जा रहा हूँ। BSSR नंबर @ नहीं कंटिन्यूस वर्ड BSSR नंबर @ बस हो गया। अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ आके मैं बिल सेंटर में लेता हूँ। अब इतना बिल सेंटर में लिखने के लिए 3 लाइन का क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ 1 लाइन का क्वेरी लिख देता हूँ, सारा बिल सेंटर ऑटोमेटिकली वो उठा देता है। इसके लिए कहाँ पे जाना है, बिल सेंट्री पे जाना है। देखिए बिल सेंट्री इन्फॉर्मेशन अब जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आके कंडेंस ऑन कंडेंस ऑफ को लेता हूँ मैं। लेने के बाद अब मैं लिखने शुरू कर देता हूँ, Alt F4 दबा दिया, यहाँ दबा के अब सीक्वल क्वेरी टेक्स्ट लेता हूँ, जो अलाइनमेंट करना बाद में कर देता हूँ। अब लिख देता हूँ PMP सेमी कॉलन रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 1
ऐड टेक्स्ट 30 लेता हूँ, 30। अभी जो 3 वहाँ वेरिएबल्स है, SGST, CGST और बिल सन्ड्री और राउंड ऑफ, वो तीनों भी क्वेरी से उठा के डायरेक्ट वहाँ से उठ के आ सकता है। अभी क्वेरी का नाम तो हो गया, नाम बाद में समझो कि SGST, अब परसेंटेज तो बेसिस परसेंट बेसिस बाद में। अब मैं यहाँ लिखता हूँ सब क्वेरी विथ कॉलम नंबर 2, वही क्वेरी न्यू से अभी उठा रहा हूँ मैं डिटेल्स बाहर प्रिंट के लिए। नेम होगा न्यू सॉरी PMP सेमी कॉलन, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 2, इतना वैल्यू हो गया। मैं अलाइनमेंट ठीक कर देता हूँ। अलाइनमेंट ठीक करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स अभी जो है यहाँ पे ऐड करने के लिए, वो सारा अभी भी ऐड करते जाता हूँ। अब ऐड करते जाता हूँ कॉमा C। अब यह सारा टोटल कैलकुलेट करके बाद में ब्लैंक स्पेस जो है मैं उसको ऐड करना पड़ेगा, ब्लैंक स्पेस को। अब यहाँ ब्लैंक स्पेस ऐड कर देता हूँ, ब्लैंक स्पेस यहाँ मुझे ऐड करना पड़ता है 70। सेव कर दिया। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके एक बार चेक करके देखता हूँ, सारा क्वेरी भी स्मूथ से प्रिंट होके आना है। अगर मेरा क्वेरी गलती है, क्वेरी में कुछ गलत है, तो वो एरर मैसेज दे देगा। अगर एरर नहीं है तो डायरेक्ट प्रिंट होके आ जाएगा। अब देखिए आ गया है डायरेक्ट प्रिंटिंग। यहाँ देखिए SGST दो बार 2.5% के लिए, 2 बार 9% के लिए 2 बार आया है। ये गलती क्या है? अभी देखिए मैं सेल टाइप में जाता हूँ, इनवॉइस का नहीं, यहाँ क्वेरी का कुछ गलत नहीं है, नहीं कुछ गलत नहीं है। tran2 डॉट वैल्यू, नहीं ये गलत है। tran2 डॉट वैल्यू 1 क्या है? गलत है वो। tran2 डॉट वैल्यू 1 नहीं, गलत है। वैल्यू 1 का क्या है? बिल सन्ड्री अमाउंट, यस SGST CGST का अमाउंट, उसका हिसाब से हम क्वेरी नहीं लिख सकता है। ये बड़ा गलत है। अभी भी ये जाने वाला नहीं है। अब दिखा दे, देखिए अब आपको फ़ायदा क्या है? आप कितना भी करो, लेकिन अब क्या हो गया, वो तो है तो है ही। अगर आपका पास 4-5 लाइन 6-7 लाइन हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। अब Alt M दबा दिया, यहाँ आके अप्लाई कंसोलिडेटेड टैक्स अमाउंट फॉर आइटम्स को एस कर दिया। अब वहाँ तो मल्टी रेट ही देता, अब अप्लाई, अब Alt F4 को प्रेस कर देता। अब देखिए सारा चेंज होके इतना में आ जाता है। अभी क्वेरी आपको प्रिंट आउट में सेम क्वेरी सेम रिजल्ट ही आता है। अब तो हमने वहाँ लिया है, अब यहाँ के हम प्रिंट आउट में चेक कर दो, चेक कर दिया तो आंसर इतना ही आ जाता है। यहाँ परसेंटेज कुछ नहीं आता है। CGST SGST इसके बाद अब राउंड ऑफ आ गया है बस। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बिल सन्ड्री हो गया है। अब एक नया क्वेरी लिखने शुरू कर देता हूँ। क्वेरी का नाम है GST समरी, ठीक है। अब यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट, सब क्वेरी लिखता हूँ VG डॉट टैक्सेबल अमाउंट, सम ऑफ VG डॉट टैक्सेबल अमाउंट कॉमा VG डॉट टैक्स रेट कॉमा सम ऑफ VG डॉट टैक्स AMT, सॉरी ये गलत है, VG डॉट टैक्स AMT कॉमा VG डॉट टैक्स रेट 1, VG डॉट टैक्स रेट 1 कॉमा सम ऑफ VG डॉट टैक्स AMT 1, सम ऑफ VG डॉट टैक्स AMT 1। ये एग्रीगेट फंक्शन है, सम ऑफ, इसके लिए मैंने ग्रुप बाय कंडीशन और ऑर्डर बाय कंडीशन को यूज़ करना है कॉमा। अब सम ऑफ VG डॉट टैक्स AMT प्लस VG डॉट टैक्स AMT 1 को लेके पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट कॉलम में लेना है सारा GST अमाउंट। अब CGST SGST IGST पूरा दिखा दिया मैंने।
अब दिखाने के बाद अब मुझे क्या है, टोटल जीएसटी होना है। टोटल जीएसटी ऐसे लिखने से आ जाता है, फ्रॉम ओचर जीएसटी सम आइटम वाइज एज वीजी वेर वीजी डॉट ओचर टाइप इज टू 9। रेक्ट टाइप नहीं आता है इस टेबल पे, वीजी डॉट ओचर टाइप इज टू 9, क्योंकि मैं ओचर जीएसटी सम आइटम वाइज टेबल पे हूँ। अब आंसर नहीं आता है क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ग्रुप बाय, क्योंकि मैंने एक अग्रीगेट फंक्शन को यूज़ किया है। जो अग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करने से अब मेरा क्या होगा, यही कंडीशन लिखना ही है, वीजी डॉट टैक्स रेट कॉमा वीजी डॉट टैक्स रेट 1। अब थोड़ा गलत हो रही है क्वेरी लिखने का, बाद में मैं टिक कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ऑर्डर बाय वीजी डॉट टैक्स कैट कोड असेंडिंग। अब रन करके देखता हूँ इस क्वेरी तो रन हो गया। अब देखिए टैक्स 1 अभी 2.5 दोबारा आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसके लिए टैक्स रेट कमा टैक्स रेट 1 को हटाना है बैक एंड क्वेरी पे। अब मैं वापस जाता हूँ। हमने बोलने के लिए बहुत आसान होता है, कभी कभी हम क्वेरी लिखने का टाइम में गलत हो गया, वो इमीडिएटली समझ में नहीं आता है, थोड़ा बैठ के सोच के करना पड़ेगा। अब मेरा क्या है, मुझे तो सिर्फ टैक्स कैट कोड से ही काम चलने वाला था। केस नहीं, ये केस की जरूरत नहीं है। सोच रहा हूं इसको फिनिश तो करना है। केस व्हेन वीजी डॉट टैक्स रेट इज इक्वल टू ब्लैंक इज इक्वल टू ब्लैंक, देन तो ब्लैंक है तो क्या करना है, हटा दिया मैंने उतना क्वेरी, क्योंकि वो ठीक से काम करने वाला नहीं है, हटा दिया। अब यहां पे लिख देता हूं टैक्स रेट, टैक्स कैट कोड को हटा दिया, कैट कोड को हटा के अब लिख देता हूं टैक्स रेट। अभी इतना लिखने के बाद क्वेरी को रन करके देखता हूं, अभी भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि कॉमा टैक्स रेट 1 वीजी डॉट टैक्स रेट 1 अब लिखता हूं वीजी डॉट टैक्स रेट 1। इस क्वेरी को रन करके देखता हूं। अब देखिए ये करेक्ट आ रहा है, ये आंसर ठीक आ रहा है। अब इतना आंसर आने के बाद इसको मुझे प्रिंट को लेके जाना है, वेर वीजी डॉट आइटम कोड वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड एंड वीजी डॉट आइटम एसएन नहीं चलने वाला है, क्यों, सॉरी आइटम एसएन का नहीं, ये अग्रीगेट फंक्शन है, इसके लिए मुझे लेके जाना है प्रिंट। अब शुरू कर देता हूँ, यहाँ पे इतना इनवर्स को डायरेक्ट प्रिंट में लेके जाता हूँ, क्योंकि एक अग्रीगेट फंक्शन है, मैं ग्रैंड टोटल में लेता हूँ इतना फंक्शन को। अब क्विट कर देता हूँ, क्वेरी तो लिख के रखा है। अब इनवॉइस डिजाइनिंग में आता हूँ, इतना आके इस सारा क्वेरी को मैं अभी मेरा इनवॉइस फुटर पे लेके जाता हूँ। मुझे एक क्यूआर कोड भी ऐड करना है। आप देखिए इतना तो आ गया। अब आता हूं, अब एक क्वेरी लिख रहा हूं, जीएसटी कैपिटल जीएसटी 2। यहां एक क्वेरी लिख रहा हूं, सेलेक्ट सम ऑफ VG डॉट टैक्सेबल AMT कॉमा सम ऑफ VG डॉट टैक्स AMT कॉमा सम ऑफ VG डॉट टैक्स AMT1 कॉमा सम ऑफ VG डॉट टैक्स AMT प्लस VG डॉट टैक्स AMT1 प्लस कर देता हूँ, क्योंकि मुझे फाइनल जीएसटी टोटल मिलना है। फ्रॉम ओचर जीएसटी सम आइटम वाइज एज VG वेर, अब ग्रुप बाय कंडीशन यूज नहीं करना पड़ेगा अभी, वेर
वेर vg.ocha_type=9। अभी रन कर देता हूँ। अब आंसर आसानी से आ जाता है क्योंकि तीनों भी समी है। अब तीनों भी यहाँ ग्रैंड टोटल पे भी ले सकता है, वोचर हेडर इन्वेंट्री से भी एक क्वेरी प्रिंट को लेके जा सकता है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ तो मैंने लिया है ग्रैंड टोटल इन्वेंट्री। सेम कंडीशन, अगर ये क्वेरी टाइप में ग्रैंड टोटल इन्वेंट्री का जगह पे वोचर हेडर इन्वेंट्री लिख दिया भी आता है, कोई बात नहीं है, आता है। अब टोटल टैक्सेबल अमाउंट का समरी दिखाने के बाद अब मुझे लिखना पड़ेगा CPI टोटल ऑन, CPI टोटल ऑफ। अब मेरा फर्स्ट तो ब्लैंक स्पेस 33 स्पेस है, यहाँ 33 स्पेस कमा BLV कमा ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद क्वेरी न्यूमेरिकल टाइप लेता हूँ, NUM न्यूमेरिकल GST। क्वेरी नेम तो न्यूमेरिकल लिया है, नेम GST/2। यहाँ लिख देता हूँ रो इक्वल टू 1, कॉलम इक्वल टू 1। यहाँ मेरा 12 स्पेस लेता हूँ। अभी मुझे आंसर आना है टोटल टैक्सेबल अमाउंट, कितना भी आपका टैक्स परसेंटेज रहने दीजिए, वो आंसर आना है एक ही टाइप। अभी उसके बाद ब्लैंक स्पेस 8, देन BLV कमा ये, देन अगेन सेम क्वेरी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे सीक्वल क्वेरी का नंबर टाइप का क्वेरी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ मेरा रो इक्वल टू 1 ही रख देता हूँ, लेकिन कॉलम इक्वल टू 2 कर देता हूँ। कॉलम इक्वल टू 2 कर देता हूँ। यहाँ 12 स्पेस का जगह पे 10 स्पेस लेता हूँ। अब सेम दोबारा 8 स्पेस लेता हूँ, उसके बाद एक BLV कमा ये लेता हूँ। अब इतना होने के बाद अब मैं कॉपी कर देता हूँ रो इक्वल टू 2 का जगह पे, जो स्क्रीन कर आप देख रहे हैं वो क्वेरी कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन रो इक्वल टू 2 का जगह पे मैं भी कर देता हूँ रो इक्वल टू 3। उसके बाद तुरंत कर देता हूँ रो इक्वल टू 4। वो तुरंत लास्ट वाला रो इक्वल टू 4, सॉरी नॉट रो इक्वल टू 4, कॉलम इक्वल टू 4। सॉरी, वेरी सॉरी, आई मेड ए मिस्टेक टुडे। ये कॉलम इक्वल टू 4 हो जाता है। आई कुड हैव डन सम मिस्टेक्स, मैंने आज गलती किया होगा क्योंकि थोड़ा मेरा। अब यहाँ पे देख लीजिए, अभी आपको आ जाता है। देखिए GST समरी जैसा हमने लिखा है वैसे वही सिमिलर टाइप में GST समरी आ जाता है। मैं इनवॉइस डिजाइनिंग पार्ट आपको यहाँ तो ज़्यादा नहीं कहा है, इतना तो आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट पोर्शन में हम आ चुका है। ऑलरेडी मैं इनवॉइस डिजाइनिंग यहाँ नहीं बोला है। अभी एक लिख देता हूँ QR कोड। QR कोड में मैं लेता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस पर हेडर एक ही लेता हूँ, बॉडी में 0, फुटर में 0 हो गया, ठीक है। अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब हेडर में आता हूँ, QR कोड का हेडर में आके अभी लिखने शुरू कर देता हूँ सारा डिटेल्स स्मॉल लेटर में। मैं इतना सारा आइडिया राजकुमार विश्वकर्मा जी से लिया हूँ, उनका वीडियो देख के ये क्वेरी लिख रहा हूँ। यहाँ पे QR कोड का क्वेरी एक्चुअली मैंने बिजी का वेबिनार देख के ही जो वहाँ से स्टडी किया, राजकुमार विश्वकर्मा जी का वेबिनार से मैं स्टडी किया है, वही अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये QR कोड तो काम करता है। अब UPI/:pay CU is equal to Indian currency INR %, PN is equal to न्यू कंपनी। यहाँ आपका कंपनी जो है, कंपनी का नाम दे दो, %, की 7 का की का ऊपर है वो %, एंड को बोल के आप लिखता है ना, वो एंड को इंग्लिश में एंड कहते हैं, यहाँ तो कंप्यूटर का भाषा में इसको कहते हैं %, इज इक्वल टू न्यू कंपनी @OKSBI। वो ये क्या है, PA इज इक्वल टू न्यू कंपनी @OKSBI। वो क्या है, वो आपका UPI ID जो आपको आपका बैंक ने जो दिया है। अब देखिए यहाँ तो लिखा है मैंने #NCF। #NCF का मतलब क्या है, अभी देखिए आपका करेंसी में 1000 के बाद एक कॉमा आता है, 10,000 के बाद एक कॉमा आता है, 1 लाख में 2 बार कॉमा आता है, वो सारा कॉमा को हटा देना है। वो #NCF का मतलब क्या है, वो #NCF इज नथिंग बट राइटिंग बिल अमाउंट विदाउट एनी कॉमा, बस इतना ही। #NCF का मतलब
नो कॉमा फॉर्मेट। बस समझ गए ना आप। 1,00,000 लिखने में आप क्या कर देते हैं, एक के बाद एक कॉमा डालते हैं, बाद में 00 लिखते हैं, बाद में कॉमा डालते हैं, 3 आइटम 00 लिखते हैं, .00। अब वो पॉइंट के बाद डॉट राइट साइड का जो 0 छोड़ो वो कुछ फर्क नहीं करता है। एक कॉमा रहता है ना, ये रीड नहीं करता है, वो ये हटाने के लिए क्या कर देना है, हैशटैग NCF का मतलब वही है, नो कॉमा फॉर्मेट। वो QR कोड क्या है, सिर्फ इंटीजर्स रीड करता है, कॉमा गिमा वो रीड नहीं करता है। स्कैन टू पे। अब क्या कर देता हूं, ये थोड़ा बोल्ड कर देता हूं, बोल्ड ऑन बोल्ड ऑफ कर देता हूं। बोल्ड ऑन बोल्ड ऑफ करने के बाद यहां बोल्ड ऑफ लास्ट लाइन में डालता हूं। तब क्या हो जाता है, स्टार्टिंग लाइन से शुरू करके कितना लाइन तरफ आप बोल्ड ऑफ डाला है वो बोल्ड ऑफ में ही चल जाएगा। बार बार बोल्ड ऑन बोल्ड ऑफ लिखने की जरूरत नहीं रहता है। अब QR कोड को लिखा है, या फॉर्मेट नेम हटा देता हूँ, वहाँ आके 1.5 फॉर्मेट नेम को हटा देता हूँ। फॉर्मेट नेम का जगह पे मेरा तो हो जाएगा QR कोड। सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ एक बार। देखिए अभी प्रिंट प्रीव्यू में बहुत अच्छा आ रहा है, आता है, बिल्कुल आता है। मैंने टेस्ट करके देखा है, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप करके देखा है, अब आता है। देखिए ऊप का ई इनवॉइस QR कोड हो गया। अब देखिए स्कैन टू पे, ये परफेक्टली आपको अब आप स्कैन किया तो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सारा कंपनी का डिटेल्स परफेक्टली नहीं फीड किया है। पार्टी को समझने के लिए ऐसा किया है, मेरा दोस्त कर जाएगा। अगर नहीं किया तो मैं उसको अल्ट्रा व्यूअर में करके देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आता हूँ, बॉडी पे छोड़ देता हूँ, फूटर पे आता हूँ। अब फूटर का कंडीशन सारा लिखने शुरू कर देता हूँ। अब फूटर कंडीशन तो लिखना पड़ेगा। वो BLV कमा ये कॉपी कर लेता हूँ, हटा दिया। अब बोल्ड ऑफ कर दिया, यहाँ तो बोल्ड ऑन कर दिया। अब प्रिंट व्यू में आगे एक बार देखते हैं। अब टर्म्स एंड कंडीशन सारा लिखना पड़ेगा। अब टर्म्स एंड कंडीशन लिखना पड़ेगा। अभी सारा टर्म्स एंड कंडीशन मैं लिख रहा हूं। फुटर का भी आ रहा है, शायद फुटर का काम नहीं शुरू हुआ है, अभी आने वाला है। अब यहाँ क्या है, फुटर लाइन का थोड़ा कमजोर हो चुका है।